Hope you all are doing good. Very good evening to one and all. All right, so today's topic is adjectives. In adjectives, especially, we are going to do degrees of comparison. Okay? तो हम लोग degrees of comparison करने वाले हैं. तो पहले what is an adjective बेटा? What is an adjective? We all know that adjectives, they describe or modify the noun or the pronoun, right? Noun या pronoun को एंड द प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, राइट? दिस इज व्हाट. तो ये क्या होता है? डिस्क्राइब या मॉडिफाई यानी वर्णन करता है. फॉर एग्जाम्पल, we I hope you all know what is a noun. Noun is a naming word. जो कोई भी है, a name, place, animal, things, abstract noun, ये सारे noun होते हैं. pronoun जो है noun के बदले लगते हैं. all this you should be knowing it. जैसे राम है, it's a noun. it's a name, right? it's a noun. तो राम के बदले ही लगाया, वो pronoun है, राइट? सो राम और सीता रहे, दो लोग रहे, तो दे होता है, वी होता है. ऑल दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑल दिस यू शुड बी नोइंग इट. सो उनको ही वर्णन जब करता है, जब डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव, जो हिंदी में विशेषण भी कहते हैं बेटा. तो अभी यहाँ पर एक डॉल है. तो अभी ये डॉल है, मैं यहाँ पर इट इज अ डॉल. So I'm just simply saying it is a doll. I did not say, I'm just it यहाँ पे pronoun है और यहाँ पर doll जो है noun है, correct? मगर अगर मैं यहाँ पर बोलूं it is a cute doll, तो ये doll का मैंने कैसे वर्णन किया बेटा? I am saying that the doll is cute. So when I say that how the doll is, I'm describing it's white in color, it's cute. Like that, when I am saying, that means I am describing the noun. So what did I say? Adjectives describe the noun or a pronoun, right? So over here, it is a cute doll. So I am describing the doll, it is cute. Now, अगर मान लीजिए मेरे पास और एक डॉल यहाँ पर रहती, और मैं जब दो या दो से अधिक डॉल कंपेयर कर रही हूँ, when same, they have the same quality and I'm comparing that, then I need these degrees of comparison. Did you get me what I am wanting to say? If I want to compare this doll with another, yeah, this one student is being compared to the other in the way of height, weight, or in the handwriting, or in the IQ level, then we need these degrees of comparison. So let's quickly go to an activity and understand first whether you understood what is an adjective, whether you have to spot out what is an adjective from in a sentence, and then we will go to the degrees of comparison. ठीक है ना बेटा? Let's do that now. So let's do, look into the degrees of comparison now. I mean, in and what is an adjective? So now I am giving you a sentence over here. A dark room. Now, room is a noun over here. इस noun के बारे में क्या बताया जा रहा है बेटा? कि वो dark है. So how are you describing the room? That it is dark. So this dark is only the adjective. Okay. So we will click the option B. So now the second question, you try to answer me. Come on, in the chat box, please answer me. Ram is a smart boy. Now, can you please tell me which is the adjective over here? A, smart; B, boy; C, Ram. Can you tell me which one? A, B, C. I will go and quickly see you in the live also, so that whether you're answering me in the live also, you can answer me. So over here, the boy is a noun. Ram is a noun, right? So how is the boy? How is the way we describe? So smart. So A is the answer, which is the adjective, right? Now, next, it is a beautiful butterfly. How is the butterfly? So how का जवाब आपको मिल रहा है कि कैसे है वो butterfly. तो how is the butterfly बेटा? कैसे है? बहुत beautiful है. तो beautiful is an adjective over here. Okay, right.
Now, Raj lives in a big house. So, which are the nouns over here? Raj is also a noun over here. House is also a noun. How is the house? It's been described. Nothing has been told about Raj, that Raj lives in a big house. तो घर कैसा है उसका? बड़ा है. उसका घर कैसा है बेटा? बड़ा है. तो ये जो वर्णन किया गया है घर के बारे में, वो ही है हमारा एडजेक्टिव. ऑल राइट. तो आप लाइव में भी मुझे आंसर्स कर सकते हो बेटा. ऑल राइट. Next, I have a beautiful white dress. So, how is my dress? It's beautiful and it's white. So, over here, there are two adjectives बेटा. यहाँ पर एक यहाँ पर बट ब्यूटीफुल जो है ये भी एडजेक्टिव है, और ये जो वाइट है, दोनों ही ड्रेस के बारे में ही बताया जा रहा है कि द ड्रेस इज ब्यूटीफुल एंड द ड्रेस इज व्हाट कलर? इट्स वाइट. So there is also how to write order of adjective also is there, which I will be teaching you. In a sentence, you can write two to three adjectives. You can describe about a noun, but in what order, that also I will be quickly teaching you. Now, today we are looking at degrees of comparison of an adjective. So we will see this one now. Okay. All right. So which is the adjective now? Yes, of course, both beautiful and white, both are the adjectives. So let's quickly click on to the both A and B. So I'm sure now you know easily what is an adjective. So let's go quickly to our topic, which is degrees of comparison. It is a black cat. The cat is black. Right, black is an adjective. Next, the frog's skin is moist. Moist is an adjective. कि गीला है उसका स्किन जो है. अगला देखेंगे, द ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड. हाउ व्हाट डिस्क्रिप्शन इज गिवन अबाउट द मैन? दैट ही इज ओल्ड. सो दैट इज एन एडजेक्टिव. नाउ, she is naughty girl. She is a naughty girl. How is the girl? She is naughty. How we have described naughty. So naughty is an adjective. Next, लास्ट वन, द बिटर गॉड इज बिटर. अभी ये बिटर गॉड क्या है बेटा? बिटर गॉड यानी करेला होता है. जो करेला है वो कड़ू है. तो करेला जो है वो नाउन है, यानी बिटर गॉड इज अ नाउन ओवर हियर. एंड कड़ू यानी बिटर जो है आपका डिस्क्रिप्शन वर्ड है, यानी बिटर इज द एडजेक्टिव. सो ए ऑप्शन इज राइट. राइट. Okay, now that you know all the adjective, what is an adjective? Let's quickly come back to the board and let's see what is the today's topic, what we are going to learn, right? तो आपको अच्छी तरह मालूम पड़ गया कि अभी एडजेक्टिव क्या है. यानी एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है. ओके, राइट. तो बेटा मान लीजिए मैं एक दुकान जा रही हूँ, मैं कुछ इयररिंग्स खरीदना चाहती हूँ. तो मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट अ लॉन्ग इयरिंग. तो व्हाट डिड आई आस्क? आई वॉन्ट अ लॉन्ग इयरिंग. तो दुकानदार मुझे ये इयरिंग आके दिखा रहा है. दिख रहा है बेटा आपको ये इयरिंग? ओके, ये इयरिंग दिखा रहा है. तो ये क्या मांगा मैंने? कि मुझे है ना लाइक लॉन्ग इयरिंग चाहिए. देख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर रखती हूँ एंड राइटिंग लॉन्ग. ऑल राइट. तो फिर बाद में मैं बोल रही नो, आई वॉन्ट लॉन्गर देन दिस. मुझे है ना इससे लंबा चाहिए. मुझे है ना इससे लंबा इयरिंग चाहिए. तो दुकानदार वापस ये दिखा रहा है. तो मैंने क्या किया? मैंने लॉन्ग मांगा, फिर बाद में वो छोटा सा लाया, तो मुझे इससे लंबा चाहिए तो मैंने बोला आई वॉन्ट लॉन्गर. ईआर ऐड किया मैंने. इस इयरिंग का मैंने कैसे वर्णन किया? लॉन्गर. ईआर ऐड किया मैंने यहाँ पर. फिर मुझे है ना इससे भी लंबा चाहिए. यू प्लीज ब्रिंग मी द लॉन्गेस्ट इयरिंग यू हैव इन द शॉप. मैंने बोला कि दुकान में तुमसे सबसे लंबा इयरिंग जो है वो ला दो, मुझे वो देखना है. तो दुकानदार ये इयरिंग लाया. ओके. तो ये क्या हुआ? दी लॉन्गेस्ट हुआ. मैंने ये क्या बोला? लॉन्गर देन. देन का वर्ड यूज किया. जब मैंने एक का दूसरे के साथ इन दोनों का कंपेयर किया, तो मैंने यहां पर ईआर ऐड किया. व्हाट डिड आई डू? आई एडेड हियर ईआर. ओके. एंड व्हेन आई compared all of these,
यस, व्हेन आई कंपेयर्ड ऑल ऑफ दीज, यानी कि सबके साथ जब कंपेयर किया, दिस इज द लॉन्गेस्ट, सो व्हाट डिड आई ऐड? EST आई एडेड. ओके, EST I added. So now we know that when I say when I'm just talking about now this one earring, one ये इधर एक बैंगल है, तो क्या है ये, इससे इससे मुझे बड़ा चाहिए, आई वांट बिगर देन दिस, तो ये लेके आता है. फिर मैं आई वांट द बिगेस्ट साइज, ये लेके आता है. तो लाइक दिस बेटा, आपको रियल लाइफ एग्जांपल में जब आपको किसी को बताना है कि आई वांट दी बिगेस्ट, यानी सबसे बड़ा चाहिए मुझे, सबसे लंबा चाहिए या सबसे खूबसूरत चाहिए आपको, तभी आपको ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चाहिए. तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, you will add er to it. When you are comparing more than two nouns or things or person or whatever it is, you will add est to it. Now let's go technically. आपको इनके नाम भी होते हैं. अभी आपको मालूम है er ऐड करना है, जो बेस एडजेक्टिव वर्ड है, या est ऐड करना है, फाइन. बट इनके नाम होते हैं. So let's quickly look at the names. Okay. Is it clear till now? If it's clear, please tell me in the chat box. Do you want me to go still more slow, or is it clear? Then I will, accordingly tell you. तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखे हैं. तो ये होते हैं बेटा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं. पॉजिटिव में जैसे मैंने अभी बताया, लॉन्ग यानी कोई कंपैरिजन नहीं है, देर इज नो कंपैरिजन. जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ए इज टॉल. Okay, but there is no comparison. Describes a noun or pronoun without comparison. There is no comparison. But comparative, you have to compare a noun or a pronoun to another. एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो इसीलिए हम er जोड़ते हैं, और आपने ये कीवर्ड देखोगे कि than करके, taller than. ओके, तो हमने er ऐड किया. यहां पर देखिए, ये ए जो बी है, ए से टॉल है, तो बी इज टॉलर देन ए. यहां पर देखिए, जो सी है सबसे लंबा है, दी टॉलेस्ट. कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, सो द सी इज दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल. सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ क्लियरली? पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं है, हम इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, हम ऐसे ही बता रहे हैं. यहाँ पर दो लोग या दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, कि ये टॉल है या टॉलर है, या स्वीटर है या स्मार्टर है, ऐसा. और यहाँ पर EST जोड़ेंगे, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, ऐसे. ओके. तो कभी कभी इसमें कुछ थोड़े बहुत रूल्स होते हैं बेटा. तो अभी आपने समझ लिया कि कहाँ पर ER ऐड करना है, कहाँ पर EST ऐड करना है. जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना है, तो आप ER ऐड करोगे, दो से अधिक हो तो आप EST ऐड करोगे. मगर इसके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं बेटा. तो अभी हम क्विकली रूल्स देखेंगे, फिर बाद में हम एक्टिविटी पर भी जाएंगे. ओके, इतना तक क्लियर है ना बेटा? तो यहाँ पर देखिए, पहला ये वाला. तो पॉजिटिव में जब भी आपके छोटे वर्ड्स या CVC वर्ड्स हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए थिन, बिग, ऐसे वर्ड्स हो, तो उनके साथ जब आप कंपैरेटिव में ER जोड़ते हो, तो आपको ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है डबल करना पड़ता है. वो क्या है करके मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ. All right, so let me explain why you need to double the consonant. ओके, चलिए. तो ये बिग लेते ना यहाँ पर. तो यहाँ पर वावल को रिकॉग्नाइज कीजिए बेटा. वावल को रिकॉग्नाइज करके आपको 1 2 गिनिए. अगर आपको 1 2 आया, तो ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है आपको डबल करके ही ER ऐड करना पड़ेगा, या तो EST ऐड करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत होगा आपका. ओके, क्लियर?
So you will say this, you will see, identify the vowel in that adjective, count 1 2 आया तो double I do, you will double the final consonant and then write ER. जैसे कि अभी दूसरा एक मैं लिख के बताती हूँ, fat, फैट है। तो हम अगर कंपेयर कर रहे हैं रामू और शामू का कि शामू फैटर है, तो हम यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, इसीलिए डबल करके टी को ER जोड़ेंगे। अंडरस्टूड? तो ये एक रूल होता है, जब आप एडजेक्टिव को देखोगे, तो जब आप एडजेक्टिव को देखोगे तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट डबल करना है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव। दूसरा, अगर वाई में खत्म होता है तो उस वाई को निकाल के यू हैव टू ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई, एंड देन ओनली यू हैव टू राइट ER और EST अकॉर्डिंगली द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। Is it clear? So, if you see smaller words or CVC words, then you have to, for the spelling, you should know that you have to double the consonant, final consonant, and add ER or EST. Then, this Y, if you see in the end, you have to see before that if there is a consonant, you will drop the Y and write IER or IST. Heavy becomes heavier, heaviest. अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। दूसरा, ई में खत्म होता है तो आप ER नहीं लिखोगे, सिर्फ R लिखोगे। ई में खत्म हुआ है तो वाइजर को हमने सिर्फ R लिखा, वैसे ही सिर्फ ST लिखोगे। एडजेक्टिव एंडिंग इन ई टेक्स ओनली R और ST। इज इट क्लियर? यस। Okay, shall I go to the fourth rule? So 1 2 3 rules I have given you. Let's go to the fourth rule. The words which are more than 2 syllable, अगर आपको syllable क्या है नहीं समझ में आता है तो नो प्रॉब्लम बेटा, आप इतना समझ लीजिए, अगर वर्ड जो है बड़ा है, 6 लेटर से ज्यादा है, उसमें 2 वॉवल्स हैं, तो आप उनके आगे मोर या मोस्ट लिखोगे, उनके पीछे ER और EST नहीं लिखोगे बेटा। यू विल नॉट राइट इंटरेस्टिंगर, इंटरेस्टिंगस्ट, ऐसे नहीं लिखोगे बेटा। उनके आगे क्या लिखोगे? मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट। ये भी देखा, बड़ा स्पेलिंग है, मोर देन 6 लेटर वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट ऐसे लिखते हैं हम। ओके, सो गॉट इट व्हेन टू राइट मोर एंड मोस्ट? ओके, right. Then we have some irregular adjectives which you cannot add ER or EST or more or most. You just have to by heart the comparative and superlative. For good and well, the comparative is better. मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि how are you doing? I am doing good. अगर आपको compare करना है आपको कल से आज, you will say I am doing better, best, then old, older, oldest, bad, evil, ill का होता है worse, worst. सो इस बोलने का मतलब है, अगर आपको यहाँ पर लिटिल है कंपोजिटिव में, तो यहाँ पर आपको लेस, लेसर आएगा, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में लीस्ट आएगा। फार, फादर्स, फादर्स, फादर, फादर्स। ऑल राइट, understood? Yes, do you have something to say? Would you like to unmute and tell me something? Yes. All right. So I hope it's clear by now the rules. The first rule is you will see whether the word is small word or CVC word. You will add E or EST by doubling the final consonant. Then you will drop the Y and add IER. I mean, write IER or IST. इफ ऑलरेडी ई में एंड हो रहा है तो आप सिर्फ आर और एस टी ऐड करोगे। दूसरा, मोर या मोस्ट ऐड करोगे, कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। And then we have irregular adjectives, and that also I have given you, which commonly which we use words. Now quickly let's go to an activity, and then now you people tell me the answers. तो यहाँ पर पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है। तो पॉजिटिव का वर्ड सब हम पहले पहले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिग है, ले लेते हैं। ओके, ब्लैक ले लेंगे हम। ओके,
तो आप जल्दी जल्दी उसका कंपैरेटिव सब यूज ट्राई कीजिए। बिग का किधर है कंपैरेटिव, ढूंढिए। बिग का कहाँ है, बिगर आएगा ना बेटा। तो बिगर का स्पेलिंग कहाँ पर है, देखिए बिगर का स्पेलिंग कहाँ पर है, ढूंढिए ढूंढिए जब तक मैं, यहाँ पर है देखिए। तो ये कंपैरेटिव में बिग का बन जाएगा बिगर। और सुपरलेटिव में क्या होता है, बिगेस्ट, दी बिगेस्ट। और ये देखिए क्लीन का क्या बनेगा, क्लीनर। तो क्लीनर कहाँ पर है, बस देखिए आप, यहाँ पर है। और यहाँ पर आएगा क्लीनेस्ट। ब्लैक का क्या आएगा बेटा, ब्लैक, ब्लैकेस्ट। कहाँ पर है ब्लैकेस्ट, ढूंढिए 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 कहाँ पर है। जब तक मैं ये ब्राइट को यहाँ ले जाती हूँ, ये हुआ हमारा ब्लैकेस्ट। तो ब्राइट का क्या होगा, ब्राइटर। और यहाँ पर क्या होगा, ब्राइटेस्ट। कहाँ पर है ब्राइटेस्ट, यहाँ पर है ब्राइट। दूसरा देखिए ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बड़ा वर्ड है ना बेटा, तो बड़ा वर्ड को क्या करेंगे हम, ब्यूटीफुलर लिखेंगे क्या, नो, यू विल राइट मोर ब्यूटीफुल इन कंपैरेटिव। एंड सुपरलेटिव यू विल राइट मोस्ट ब्यूटीफुल। वेरी गुड बेटा। अभी ये कंफ्यूज, ये भी बड़ा वर्ड है, कंफ्यूज्ड। तो आप क्या करोगे इसको, कंफ्यूस्टर ऐसे लिखोगे क्या, नो, यू विल राइट मोर कंफ्यूज्ड। एंड देन यू विल राइट मोस्ट कंफ्यूज्ड। वेर इज मोस्ट कंफ्यूज्ड, मोस्ट फैसिनेटिंग है, राइट, यहाँ पर है। ऑल राइट। तो दूसरा लेंगे क्लेवर। क्लेवरर यहाँ पर आएगा। क्लेवर कहाँ पर है, ए क्लेवरर, ओ सॉरी, यहाँ पर है क्लेवरर। क्लेवर यहाँ पर आएगा, ओके। और क्लेवरर यहाँ पर आएगा। क्लेवरेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव में आएगा। सो डर्टी, यस डर्टी। देखो वाई में एंड हो रहा है देखिए, तो वाई को ड्रॉप करके हमको आईईआर लिखना है कंपैरेटिव में। तो आईईआर लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, आईईआर। सो डर्टीएस्ट, तो आईईएसटी लिखा है, देखिए बेटा। फिर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट अगेन इज अ बिगर वर्ड, इट्स अ मोर देन वन syllable. So difficult, more difficult, and then most difficult. So you saw, I'm giving you so many examples of all these adjectives or degrees of comparison. Fascinating. It's fascinating. This movie is fascinating. More fascinating. Most fascinating. Right. We are done. Right. So now that you know पॉजिटिव में कैसे आते हैं, कंपैरेटिव में कैसे आते हैं, सुपरलेटिव में कैसे आते हैं, अभी सेंटेंस पर जाएं। कैन यू टेल मी इन विच व्हाट विल कम? Yes, if you want to make a note, please write it down. I'll wait for you if you want to. Else, if you just want to take a screenshot, also you can take it. Right? So you noticed how in, if it's a bigger word, you will write more beautiful. You will not write beautifuler, beautifulest. ऐसे नहीं लिखोगे। और जब सीवीसी वर्ड्स होते हैं, तो ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, देखिए यहाँ पे डबल जी लिखा हुआ है। और ये जो वाई में एंड हो रहा है देखिए, उस वाई को ड्रॉप करके आईईआर लिखा हुआ है, देखिए बेटा, डर्टियर, डर्टिएस्ट। यस। So whatever I taught you on the board, that rules apply to this. Okay. So let me go to the sentence now. Now you tell me, Ria is beautiful. What? This beautiful is a positive, comparative or superlative? Answers बोलिए बेटा। ऑप्शन ए बी सी आप बोल के बोलिए। चलिए, ये पहला वाला ए है, बी है और सी है। आप बताइए कौन सा आंसर इसमें आएगा। तो ये इस सेंटेंस में, वी आर ओनली कमिंग टू नो दैट रिया इज ब्यूटीफुल। वी आर नॉट एबल टू, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ रिया विद एनीवन। सो दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट। जो ब्यूटीफुल है, कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव है। अगला देखेंगे बेटा,
Oranges are cheaper than apples. So जो orange को है apples के साथ compare किया हुआ है कि cheap, अगर oranges are cheap सिर्फ बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर apples के साथ तुलना की गई है. There is comparison between two. So then what will you do बेटा? और then keyword भी हमको दिख गया है यहाँ पर. So it is definitely a comparative. Correct. It is an comparative. Very good, children. I'm sure you all would have, you be, must be, telling me the answers from there. China is one of the largest country in the world. तो चाइना को यानी कंपैरिजन है यानी दी लार्जेस्ट. कैन यू सी द कीवर्ड द? और यहाँ पर ईएसटी ऐड एसटी ऐड किया हुआ है, देखिए आप ध्यान से. बिकॉज दिस लार्ज हैज ई ऑलरेडी, तो हमने सिर्फ यहाँ पर एसटी ऐड किया है. और आपको दी वर्ड सुपरलेटिव में पक्का दिखेगा. सो बिफोर द adjective, you will definitely see the word in front of it. So that is a superlative adjective and a superlative degree of comparison. Understood? Yes. So what is it? It is a superlative is what I told you now. So let's quickly click on to the superlative. दूसरा देखेंगे बेटा. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वापस माउंट एवरेस्ट को पूरे संसार में उस पीक को कंपेयर किया गया है. वापस आप देखिए ईएसटी ऐड किया है. ईएसटी किस में करते हैं बेटा? हम सुपरलेटिव में करते हैं. और दी आपको दिख गया, देखिए. सो इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. रवि इज द यंगेस्ट ऑफ माई सन्स. नाउ रवि को उनके सारे सन्स के साथ कंपेयर किया गया है कि वो छोटा, सबसे छोटा है. तो हिंदी में आपको जब सबसे, उससे नहीं सबसे ऐसा दिख रहा है तो वो पक्का वो क्या है? सुपरलेटिव ही है. ऑल राइट चिल्ड्रन, तो आप लोग देख लीजिए आंसर्स. आपको देखना है तो रिया इज ब्यूटीफुल. इट इज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन. इफ आई से रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता या गीता, जो भी है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो वो एक ना, इट इज अ कंपैरेटिव. मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ यहाँ पर आपको. जैसे मैंने यहाँ पर बोला रिया इज more beautiful, beautiful than सीता, ऐसे. तो यहाँ पर कंपेयर, ये क्या होगा फिर? ये कंपैरेटिव डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर मोर आया है वर्ड, कंपैरेटिव डिग्री होगा. और इफ आई से रिया इज द ब्यूटीफुल, most beautiful girl in the class, like that if I'm saying, see next sentence I'm writing, Riya is the most beautiful girl in the class. तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया. तो यहाँ पर रिया को कोई तुलना नहीं है. शी इज जस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता. देयर इज कंपैरिजन बिटवीन रिया एंड सीता, सो इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. हियर रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी पूरे क्लास में जो रिया है वो सुंदर है, तो इसीलिए ये सुपरलेटिव है. सो यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ वी हैव डन इट ओवर हियर. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस सेंटेंस आल्सो. ऑल राइट, तो हमारा समय भी हो रहा है. यहाँ पर oranges are cheaper than apples. If I just say oranges are cheap, then it is a positive degree. Yeah, I'm saying oranges are cheaper than apples. So comparison is there between apples and orange. So that's why it is an comparative degree. And here China is one of the largest countries in the world. It's superlative. Mount Everest is the highest peak in the world. It's superlative because again, it is the highest. Okay. Ravi is the youngest. Ravi is young. बोला तो positive है. Ravi is younger than Rahul. ऐसे बोला तो comparative है. Ravi is the youngest of my sons. बोला तो वो superlative.
All right, children. So I hope you all understood it very well. So if you have any queries, please ask me. Else we'll wind up the session. Yes. How was the session? If you could give me a feedback in the chat box. How was it? Was it informative? Was it interactive? Uh, how do you want your you have any particular topic you want me to take that particular topic? I'll definitely come with that particular topic. Do you want your lessons to be taught, or you're fine with grammar? All these inputs you can give me in the chat box. I will accordingly tailor make my classes. All right. Thank you so much for your time, children. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you.